Namaste Gurukulians. How are you dear students? Hope you will be fine. We will continue class 11th accountancy and chapter 6 GST goods and services tax. So today we will finish this chapter. This is the part 5, last video of this chapter. We have discussed the general entries relating to GST. First we have discussed relating to intrastate sales, when goods are purchased and sold within the same state, where we have opened CGST and SGST account. Then we have discussed the general entries about interstate sales, when goods are purchased and sold from other states. So in case of interstate sales, we open IGST account. So we will continue the same. Some more questions we will discuss. So now open the book, students. DK Goel book, open page number 10.19. 10.19. This is illustration number 7. Okay, draw the format. Pass entries in the books of Sri Gopi Chand of Kerala, assuming CGST 9% and SGST 9%. तो ये जो जिसकी हम बुक्स प्रिपेयर कर रहे हैं, गोपी चंद, ही बिलोंग्स टू केरला. तो ऑलवेज कीप इन माइंड फ्रॉम वेयर गुड्स आर परचेज्ड और सोल्ड. तो इट विल डिपेंड, यू विल ओपन CGST एंड SGST अकाउंट और IGST अकाउंट. 2018 अप्रैल 1. Purchase goods of rupees 3 lakh from Karunakaran of Chennai, तमिलनाडु. अब दूसरे स्टेट से खरीदे हैं तो यू विल ओपन IGST अकाउंट. एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट, ₹3 lakh. इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, इट विल बी 18%, 9% CGST, 9% SGST. तो आप कंबाइंड लगाओगे 18%, 54,000 एंड क्रेडिट द सप्लायर. किससे खरीदा है? करुणाकरण. तो टू करुणाकरण. ₹3,54,000. ओके. April 3. Purchase goods for rupees 50,000 from Ganesan of Ernakulam, Kerala. अब सेम स्टेट से खरीदा है तो यू विल ओपन CGST एंड SGST अकाउंट. तो परचेज अकाउंट डेबिट 50,000. इनपुट CGST account debit, 9% of 50,000, 4,500. Input SGST account debit, same amount, to supplier, name is Ganesan. To, use the word to Ganesan. 59,000. Okay. Write the narration. Goods purchased and GST paid. Now, next on 10th, April 10. Sold goods costing rupees 80,000 to Naidu of Hyderabad, Telangana.
अब जिसकी बुक्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो केरला से बिलोंग करता है। गुड्स आर सोल्ड टू हैदराबाद, तेलंगाना, तो इट इज़ ए केस ऑफ इंटरस्टेट सेल्स, तो यू विल ओपन IGST अकाउंट एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब किसको सेल किया है? नायडू को। क्रेडिट सेल्स है तो डेबिट द रिसीवर नायडू। नायडू डेबिट टू सेल्स and sales amount is 80,000, profit 25%, तो 25% means 1/4, 20,000, 1 लाख। अब इस 1 लाख पर ट्रेड डिस्काउंट दी है 10%, तो 10% मीन्स 10,000, तो सेल अमाउंट इज 90,000। तो नायडू डेबिट टू सेल्स 90,000 टू आउटपुट IGST, क्योंकि दूसरे स्टेट में सेल किया है, रेट इज 18%, दोनों का टोटल, तो 18% ऑफ 90,000 इट विल बी 0, 2, 9 और 7, 16,200, टोटल 1,06,200। राइट नरेशन, goods sold and IGST collected. Okay, then April 15, sold goods to Kottayam, Kerala, सेम स्टेट में है, कॉस्टिंग 2,50,000 एट 60% प्रॉफिट लेस ट्रेड डिस्काउंट 15% अगेंस्ट चेक विच वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चेक बैंक में जमा भी कर दिया था, यू विल डेबिट बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू इनपुट CGST एंड एस, क्योंकि सेम स्टेट है, केरला में सेल किया है, टू इनपुट सॉरी ऑन सेल्स GST is collected, that is output CGST to output SGST account. तो first calculate the figure of sales. Cost is 2,50,000 and at profit of 60%, तो 60% निकालिए इसका 1,50,000। अब इस पर ट्रेड डिस्काउंट अलाउ की है 15%, तो कैलकुलेट 15% होगा 007 और 22,500 डिडक्ट कर दो इसमें से, तो रिमेनिंग अमाउंट आएगा ये 5 और 7 to 127,500। This is April 15. See it again. Mistake is there. जो प्रॉफिट है वो हमने ऐड करना था, वो डिडक्ट कर चुके हैं। दिस इज द मिस्टेक, डू इट अगेन। देखो, गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग ₹2,50,000 एट 60% प्रॉफिट, तो 60% प्रॉफिट कितना होगा? 1,50,000, तो प्रॉफिट ऐड होगा ना 4 लाख। नाउ ट्रेड डिस्काउंट 15% ऑन दिस, ये कितना होगा? 60,000 डिडक्ट कर दो ट्रेड डिस्काउंट, तो इट इज 340। 3,40,000 इज द अमाउंट ऑफ सेल्स, तो टू सेल्स 3,40,000। नाउ कैलकुलेट CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 9%, तो इसका 9% निकालें, 327 30,600। सेम SGST, तो टोटल कर दें 6, 10,
4,01,200. This is the entry. Write the narration. Goods sold by check and GST collected. Now, next is on 16. Next entry. Advertisement charges rupees 8,000 paid in cash. Debit advertisement expenses debit 8,000. तो इस पर CGST और SGST लगेगा क्योंकि सेम, जब भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो वी विल अज्यूम दैट ट्रांजैक्शन टेक प्लेस विद इन द सेम स्टेट. तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 9%, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 9%. पेमेंट इज मेड बाय कैश, तो टू कैश अकाउंट. Total. Right narration. Paid for advertisement expenses and GST. Next on 20. Purchased a computer for office use for rupees 30,000 and payment made by check. तो जब भी कंप्यूटर खरीदा है you will open office equipment account. Cost of computer is 30,000. तो ये इंट्रा स्टेट सेल्स का केस अज्यूम करेंगे क्योंकि गिवन नहीं है. तो चार्ज GST इनपुट CGST डेबिट 9% 2,700. इनपुट SGST डेबिट. पेमेंट इज मेड बाय चेक, तो टू बैंक अकाउंट. ओके. नेक्स्ट ऑन 25th अप्रैल 25. प्रोप्राइटर विड्रू रुपीज 10,000 फॉर पर्सनल यूज. 20,000 रुपये निकाले तो ड्रॉइंग डेबिट टू कैश, सिंपल एंट्री 10,000. ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000. ओके. एंड लास्ट इज payment made of balance amount of GST. So students, we have decided that we will not do this topic, payment of GST. Okay, we will do up to here. Now next question number 8, it is also same, you will do yourself, see the illustration and do exercise. And last question number 9 we will do. This is page number 10.24, illustration 9. Pass entries in the books of all parties in the following cases, assuming CGST 9%, SGST 9%. तो इसमें एक लिंक है ट्रांजैक्शंस की. पहले एक पर्सन ने दूसरे को सेल किया, दूसरे ने तीसरे को, इस तरह से. तो जिसने सेल किया है उसके लिए आउटपुट GST होगा. अब दूसरे ने पहले से खरीदा तो परचेज की एंट्री करेंगे, वो इनपुट हो जाएगा. तो इस तरह की चेन ऑफ ट्रांजैक्शंस इज गिवन इन दिस क्वेश्चन. तो यू विल रिकॉर्ड एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ऑल द पार्टीज.
2018 अप्रैल 5, गुड सोल्ड बाय ए मैन्युफैक्चरर अंकित ऑफ महाराष्ट्र। अब अंकित ने सेल किया है, अंकित की परचेज की डिटेल नहीं, तो हम अंकित से स्टार्ट करते हैं। पहले प्रिपेयर करोगे आप बुक्स ऑफ अंकित, बुक्स ऑफ अंकित या जर्नल ऑफ अंकित। ओके, डेट इज 2018 अप्रैल 5। गुड सोल्ड बाय अंकित ऑफ महाराष्ट्र टू ए डीलर ब्रिजेश ऑफ महाराष्ट्र। सेम स्टेट का है, तो किसको सेल किया? ब्रजेश को। तो डेबिट द ब्रजेश, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, ब्रजेश डेबिट टू सेल्स, और अमाउंट इज 50,000। तो इट इज ए केस ऑफ इंट्रा स्टेट सेल्स, तो यू विल कलेक्ट आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। तो 9% इज 4500, टोटल अमाउंट विल बी 59,000। ओके, तो दिस इज द एंट्री इन द बुक्स ऑफ अंकित। अब अंकित ने सेल किया ब्रिजेश को, नाउ यू विल प्रिपेयर बुक्स ऑफ ब्रिजेश। अंकित ने ब्रजेश को सेल किया, तो ब्रजेश परचेज गुड्स फ्रॉम अंकित, सेम डेट 2018 मार्च, ये अप्रैल 5। तो परचेज अकाउंट डेबिट दिस अमाउंट 50,000। अभी इसके लिए इनपुट है वो इनपुट CGST 4500, 9%, इनपुट SGST डेबिट 4500 टू सप्लायर, सप्लायर इज अंकित। अंकित ने ब्रजेश को सेल किया था, ब्रजेश ने अंकित से खरीदा, तो टू अंकित। अमाउंट इज दिस 59,000। ओके, राइट नरेशन, गुड्स परचेज एंड GST पेड। नाउ ऑन अप्रैल 7, नेक्स्ट डेट, गुड सोल्ड बाय ब्रिजेश टू चंद्रा ऑफ गुजरात। अब ब्रिजेश ने चंद्रा को सेल कर दिया, गुजरात का है वो, ये महाराष्ट्र का था, तो इट इज़ ए केस ऑफ इंटरस्टेट सेल्स, तो हम आउटपुट IGST को चार्ज करेंगे। तो इट वाज सोल्ड ऑन अप्रैल 7 टू चंद्रा, चंद्रा डेबिट्स टू सेल्स, अमाउंट इज 1,20,000। It is a case of other state sales, so to output IGST 9 plus 9 18%, तो 1,20,000 18%, it will be 21,600। तो चंद्रा विल बी डेबिटेड बाई 1,41,600। तो दिस इज द एंट्री इन द बुक्स ऑफ ब्रिजेस। ओके, तो वी विल कंटिन्यू दिस चैन। ब्रिजेश ने सेल किया, ये खरीदा था अंकित से। नाउ ऑन सेम डे, ये 7th को, जब चंद्रा ने सेल, ये ब्रिजेश ने सेल किया चंद्रा को,
तो चंद्रा ने खरीदा। नाउ वी विल प्रिपेयर द बुक्स ऑफ चंद्रा। अप्रैल 7। अब इसने खरीदा है तो इसके लिए वो परचेज होगा, परचेज अकाउंट डेबिट, दिस अमाउंट 1,20,000। इनपुट IGST डेबिट 21,600। टू किससे खरीदा इसने? ब्रिजेस से, तो टू ब्रिजेस। ओके, 1,41,600। नाउ on April 15, see, goods sold by Chandra, these are the books of Chandra। चंद्रा ने सेल किया टू दिनेश ऑफ गुजरात। अब ये जो चंद्रा था ये भी गुजरात का था, दिनेश भी गुजरात का है। दिनेश को सेल किया तो इस पर IGST लगेगा, CGST एंड SGST। तो इसने सेल किया कि वेट फॉर ए वाइल, वी आर प्रिपेयरिंग द बुक्स ऑफ चंद्रा। तो चंद्रा सोल्ड गुड्स ऑन 15, गुड्स सोल्ड बाय चंद्रा टू दिनेश ऑफ गुजरात। तो डेबिट दिनेश, सेम स्टेट का है, टू सेल्स, सेल्स अमाउंट इज 1,50,000। तो सेम स्टेट के लिए टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST, 9% होगा 13,500, 13,500, 27 और 177। ओके, अब नाउ वी विल प्रिपेयर द बुक्स ऑफ दिनेश। अब चंद्रा ने सेल किया था दिनेश को, तो दिनेश ने चंद्रा से खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट। डेट इज 2018 अप्रैल 15, 1,50,000। नाउ इट विल बी इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट, SGST। टू चंद्रा से खरीदा तो 1,77,000। ओके, then last transaction, good sold by Dinesh, this is the book of Dinesh। दिनेश ने सेल किया टू एकता ऑफ राजस्थान। अभी दूसरे स्टेट में आ गया तो डेबिट एकता, डेट इज अप्रैल 20, एकता डेबिट, टू सेल्स, अमाउंट इज 2 लाख, गुड सोल्ड बाय दिनेश टू एकता ऑफ राजस्थान कॉस्टिंग 1,50,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 33 into 1/3% ऑन कॉस्ट। ये 33 in 1/3% होता है 1/3, तो 1,50,000 का 1/3 होगा 50,000, तो ऐड करो प्रॉफिट 2 लाख हो जाएगा। एकता डेबिट टू सेल्स 2 लाख। अब ये दूसरे स्टेट का मैटर है तो IGST लगेगा, रेट है 18%, तो 18% निकाल लो। टू आउटपुट IGST, 18% ऑफ 2 लाख इज 36,000, तो टोटल 2,36,000।
This is last transaction. Now pass entries in the books of Ekta. Same date 2018 अप्रैल 20। अब इसने ख़रीदा है तो सेल्स की बजाय इसकी परचेज आ जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिट 2 लाख। इनपुट IGST डेबिट 36,000 टू, इसके लिए जो सप्लायर वो दिनेश है तो टू दिनेश 2,36,000। This is all about this. Okay, now students, we have completed the chapter of GST. So after this chapter we will start next, that is cash book. We have completed the journal. These are called as books of original entry. That book in which first of all transactions are recorded is called as journal. तो journal we have completed, 2 chapters थे इसके, एक journal था, इसके अलावा GST भी journal में। Now we will prepare subsidiary books. तो these subsidiary books include cash book, purchase book, sales book, purchase return book, sales return book, journal proper. तो one cash book we will study next chapter and other subsidiary books we will study next to next chapter. Okay students, goodbye, have a nice day.